Hello everyone. Yet again, I'm back with another session of IELTS General Training Writing. Today we are going to discuss about IELTS General Training Writing Task 1, which is the letter writing. तो आज मैं complete information share करूंगी आपके साथ for the writing task 1, that is letter writing. वो क्या है, उसमें हम क्या करते हैं, कितने वर्ड लिमिट होना चाहिए, कितने पैराग्राफ्स फॉर्म करने हैं, कैसे करने हैं, all those things we are going to discuss in details today. So let's get started without wasting the time. Come. Okay, when we talk about IELTS general training, so the task 1 is letter writing. As I have already discussed this thing that letter writing में कितने words आपने लिखने हैं, the word limit here is minimum 150 words. Maximum, there is no such specific limit, but I suggest the students not to exceed 170 words, because the more you write, there are more chances of writing it inappropriately, more chances of going irrelevant in your ideas. So stay very connected and stick to your word limit. Now, when we talk about letter writing, so किस किस तरह के क्वेश्चंस लेटर राइटिंग में हमें आ सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी कैन हैव 3 types of letter writing. The first type is formal letters. Second, we have semi-formal letters. And the third letter or the third category that we can have is, of course, informal letters. So हमने सबने इनके बारे में सुना है, पढ़ा है. In our school days, we have studied, we have understood कि ये क्या है. But यहाँ IELTS के एग्जाम में इसकी डिमांड थोड़ी अलग है. So we need to understand कि एग्जामिनेशन में हम किस तरह से लिखें, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं. So whenever we want to start our letter, here in IELTS, we never start it with any of the addresses, right? So you are not going to write, जैसे हम स्कूल में लिखते थे, to the principal so and so school, right? So ऐसा कुछ भी फॉर्मेट यहाँ यूज नहीं होगा. How are you going to start the letter? कोई भी लेटर हो, आप फॉर्मल है चाहे सेमी फॉर्मल है, सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है? You're gonna start by starting of the letter. स्टार्टिंग कैसे होगी? फॉर द फॉर्मल लेटर आप डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे डियर, डियर सर और मैडम and comma. Now, if you know that if you're, for example, writing to your boss, then of course you will say that dear sir, आपको पता है आपका boss कौन है, वो male है, female है, so accordingly sir or madam you can choose. Otherwise, if you want to write both, you can simply write dear sir or madam. Coming to semi-formal, again you can start it by dear sir or madam. But इसके अलावा if you know the name of the person whom you are writing, अच्छा, how would you know the name? तो मैं पहले एक चीज आपको बताना थोड़ा सा भूल गई, so let me just take you little back and tell you once again. Formal letters होते कौन से हैं? Formal letters are usually the official letters that you write to your seniors, to your bosses, right? So those are, or maybe some officials, right? So those are formal letters. Semi-formal is the one that we write to our acquaintance. कोई हमारा जानकार, दूर का जानकार, कोई ऐसा जिसको हम मिले पर बहुत ज़्यादा नहीं जानते, या मे बी आपका नेबर जिसको आप जानते हैं लेकिन वो आपका ना तो फ्रेंड है ना ही आपका बॉस है, राइट? सो दैट काइंड ऑफ लेटर इज कॉल्ड एज अ सेमी फॉर्मल लेटर, while the third type of letter is the informal letter, that is
the one that you write to your friends, to your relatives, to your known ones, to your near and dear ones. So now I think it's clear कि semi formal, formal और informal में difference क्या है. तो मैं बात करूं फॉर्मल की, तो आप उसको ऐसे स्टार्ट करेंगे. सेमी फॉर्मल को भी आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल अपने नेबर को लिख रहे हैं लेटर, तो हमें ज्यादातर अपने नेबर्स का नाम पता होता है. सो इन दैट केस हम यहाँ पर अपने नेबर का नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट दैट इज गोइंग टू बी हाउ. आप लिखेंगे डियर. नाउ यू कैन राइट मिस्टर और मिस according to the male or female to whom you are writing. So if for example my neighbor's name is Johnson Steves, so I will write dear Mr. Johnson, right, and again a comma. Clear? So हम हमेशा सेमी फॉर्मल लेटर्स में चाहें तो नाम लिख सकते हैं, पर वो हमेशा टाइटल मिस्टर या मिस के साथ होना चाहिए, बिकॉज इट इज सेमी फॉर्मल. यू आर नॉट गोइंग टू एड्रेस देम बाय देयर जस्ट सिंपल फर्स्ट नेम, बिकॉज यू आर नॉट सो फ्रेंडली टू देम. यू आर नॉट राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर. So the use of correct language is very, very important. So make sure that you start your letter correctly. I hope मैं ये चीज क्लियर कर दिया. Another thing, जो आप नाम चूज कर रहे हो, अगर आप नाम प्रेफर करते हो लिखना, तो try writing some English names. Do not write any, our native language names like our Punjabi names or something like that. So always choose some English name for yourself. नेक्स्ट, इनफॉर्मल लेटर्स. इनफॉर्मल लेटर्स जैसे मैंने कहा फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं, तो या तो आप सीधा स्टार्ट कीजिए बाय सेइंग डियर जॉन, या फिर आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं हाय जॉन और हेलो जॉन. यू कैन राइट दिस वे एज वेल. सो क्योंकि इनफॉर्मल हम अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लोज्ड वंस को लिखते हैं, तो आपका लिखने का स्टाइल भी कुछ उसी तरीके का होना चाहिए, राइट. सो ये तो हो गई आपकी स्टार्टिंग कि आप किस लेटर को किस तरह से शुरू करेंगे. मैं डायरेक्टली अब आती हूँ एंडिंग पे कि क्लोजिंग कैसे करेंगे लेटर की, पहले वो डिस्कस करते हैं. तो ये तो हुआ स्टार्टिंग. कमिंग टू द क्लोजिंग नाउ. अगर मैं क्लोजिंग या एंडिंग की बात करूं, तो आप कैसे फिनिश करेंगे फॉर्मल लेटर को. फॉर्मल लेटर को जब हम फिनिश करेंगे तो हम कहेंगे योर्स सिंसियरली एंड आपका नाम. Now your full name, and again try to write your full name, which is an English name. Try choosing some English name for yourself. Don't write your own name if your name is of your native language. For example, my name is Gurpreet Kaur, so I won't write Gurpreet Kaur. मैं try करूँगी कि यहाँ मैं Gurpreet Kaur ना लिख के मैं कोई English name, for example, Mary Matthew, Mary Matthews लिख सकते. तो कोई भी एक नाम अपने लिए सोच के रख लो कि कोई भी लेटर आएगा तो यू आर गोइंग टू एंड योर लेटर बाय दैट नेम. सो अवॉइड राइटिंग योर नेम इफ योर नेम इज नॉट एन इंग्लिश वन. इफ यू हैव अ इंग्लिश नेम, दैट्स एब्सोल्युटली परफेक्टली फाइन. ओके, कमिंग टू सेमी फॉर्मल. सेमी फॉर्मल कैसे फिनिश करेंगे, या तो योर सिंसियरली या योर फेथफुली भी आप लिख सकते हैं. दैट्स टोटली अप टू यू. एंड योर नेम अगेन, तो यहाँ आप चाहें तो जस्ट फर्स्ट नेम भी लिख सकते हैं, पर गो फॉर द फुल नेम ओनली. मेरी मैथ्यू फॉर एग्जाम्पल. सेम. इंटरनेशनल एग्जाम है, इसलिए मैं कहती हूँ ट्राई राइटिंग इंग्लिश नेम्स. अगर आपका ये कोई लोकल एग्जाम होता तो फर्क नहीं पड़ना था, बट बिकॉज यहाँ पर कई बार ऐसे चेकर्स होते हैं who are not from your country, not from India, they are the foreigners. So of course it should be for them that they feel that some international student has written this test, right? So choosing the English names is not mandatory, but it is just to create a good impression. That's it. Okay,
नाउ कमिंग टू इनफॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर की एंडिंग आप कैसे करते हैं? आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो या अपने मे बी अंकल को लेटर लिख रहे हो, तो एंडिंग कैसे करोगे, क्या कहोगे? योर फेथफुली, योर सिंसियरली? नो, नॉट एट ऑल। वहां पे हम कहेंगे योर लविंग, एंड मे बी अगर मैं लिख रही हूं तो योर लविंग मेरी, right? Similarly, warm wishes, Mary. With love, Mary. Regards, Mary, right? So you can choose to write or end your letter accordingly. Okay. So I hope this is clear. I'm giving you a minute if you want to just note this down. Okay. So I think we should continue now. So this is the way how you're going to start and how you're going to close your letter. अब हम बात करते हैं कि हमें लेटर कैसे आता है, क्वेश्चन क्या होगा और बीच के पैराग्राफ्स। अब हमने तो सिर्फ ये डिस्कस किया स्टार्ट और एंड कैसे करना है, अब हम डिस्कस करते हैं कि बीच में कैसे पैराग्राफ्स बनेंगे और किस तरह हम उन पैराग्राफ्स को फॉर्म करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है, वी हैव सीन। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ टू start the first statement of your letter, that means the starting statement, and then I'm going to discuss some closing statements. तो जब हम लेटर लिखते हैं, अगर मैं फॉर्मल लेटर लिख रही हूँ तो मैं क्या पहले उसको अपने बॉस को हाय हेलो कहूंगी? मैं उसको ये कहूंगी कि आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ? नो, ऑफ कोर्स नॉट। आप किस पर्पस के लिए लेटर लिख रहे हो, यू कम डायरेक्टली टू द पॉइंट एंड एक्सप्लेन दैट। सेम इज द केस इन द फॉर्मल लेटर। So if you're writing a formal letter or if you're writing a semi-formal letter, there is no need to ask about their well-being or tell about your well-being. You'll come directly to the point and state that why you are writing the letter, right? And on the other hand, if you're writing informal letter, then in informal letter, you don't just come directly to the point. Because you're writing to your so closed ones, you're going to ask about their health, their well-being. You can probably tell about you, how you are, you're missing them badly, right? So all those things, and then after that you will continue telling them that what is the purpose of your writing for that letter. So always remember this thing कि अगर formal या semi formal letter है तो आप directly to the point क्यों letter लिख रहे हो ये बात करोगे। ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल है तो आप पहले जिसको लेटर लिख रहे हो आप उसका हालचाल पूछो, एंड देन आफ्टर दैट यू राइट व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर राइटिंग। क्लियर? सिमिलरली कमिंग टू द एंडिंग ऑफ द लेटर। नाउ एंडिंग स्टेटमेंट्स भी बहुत जरूरी होती हैं। कभी भी आपको लेटर आ रहा है, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि लेटर जो है वो किस तरह का लेटर है। We can have different type of letters. Means you need to identify the purpose of the letter. For example, अगर आपका letter है for complaint, right? So वो रहेगा जैसे आपको कोई सर्विस अच्छी नहीं मिली, so you are going to write a letter to complain about it. So वो हो गया आपका complaint letter. वाइस वर्सा, अगर आपने किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है तो वो हो गया आपका रिक्वेस्ट लेटर। इसी तरह आपको बहुत सारे और लेटर्स आ सकते हैं, इंफॉर्मेशन गिविंग लेटर, इंफॉर्मेशन टेकिंग लेटर, और यू कैन हैव अपॉलॉजी लेटर, लेटर ऑफ रिग्रेट। ठीक है, तो अलग अलग तरह के लेटर्स हैं और अलग अलग तरह के लेटर्स के हिसाब से अलग अलग तरह की जो है आपकी एंडिंग स्टेटमेंट्स होंगी। आपको कुछ सैम्पल एंडिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो मैं वीडियो में कहीं ना कहीं लिंक उसका दे दूंगी आपको, सो दैट यू कैन गो टू दैट लिंक and see all those ending statements for yourself. But for example, formal letter हम लिख रहे हैं और हमें situation है कि आपने request करनी है, आप मे बी लेटर लिख रहे हैं अपने बॉस को एंड आप कुछ छुट्टियां लेना चाहते हैं एंड यू वांट टू रिक्वेस्ट फॉर द लीव्स फ्रॉम योर बॉस।
सो एट द एंड ऑफ द लेटर जब आप फिनिश करेंगे सब कुछ लिखना, तो नीचे बिल्कुल लास्ट में आप एक लाइन लिखेंगे. क्या लिख सकते हैं कि आई होप यू टेक दिस मैटर इनटू कंसिडरेशन. I hope you would grant me the leaves. Thank you. And then फिर नीचे आएगा yours sincerely and now. Right? Similarly, आप informal letter लिख रहे हैं, आप अपने friend को लिख रहे हैं, तो आप friend को मानो letter लिख रहे हो उसके birthday पे, you're wishing your friend, तो जब आप end करेंगे letter का तो क्या लिख सकते हैं? I hope this day brings lots of happiness and joy. Hoping to see you soon. फिर your loving friend या your friend and नीचे आपका नाम. So I think it's quite clear now कि हमें सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेटमेंट कैसे लिखनी है और फिर उसके बाद एंडिंग स्टेटमेंट में हमें क्या लिखना है. अब बात आती है लेटर में बीच में क्या लिखना है और कैसे लिखना है उस चीज की. So let's get started with understanding about what to write in the letter, how to form the paragraphs of the letter now. Okay, so let's continue and learn how to make the paragraphs of letter. But before that, please like, share and subscribe the channel. Also press the bell icon so that you can get all the notifications about our new uploaded videos. Okay, so now when we talk about letter writing and its paragraph formation, then you have to make sure that the paragraphs should contain only the required information. Letter में किस तरह से question आता है? This is the question and this is how you're going to get a question. First of all, you will be having a statement. For example, a friend from another country is coming to stay with you and has sent an email asking what type of clothes to bring. So this is the statement of the question, and now it says what you have to write in your letter. So write a letter to your friend. In your letter, you will have 3 points related to your question statement. And आपको कुछ नहीं करना, letter writing में इन 3 points पे based 3 different paragraphs बना देने हैं. That's it what you have to do in your letters. So first point is describe the type of weather at different times of the year in your city. So आपने फर्स्ट पैराग्राफ फॉर्म करना है जिसमें आप ये बताएंगे कि अलग अलग टाइम पे सिटी में किस तरह का वेदर होता है. अब आप कोशिश करें यू ऐड द नेम ऑफ द मंथ्स, कब आपके सिटी में समर्स होते हैं, कब विंटर्स होते हैं, कब मॉनसून, कब ऑटम, कब स्प्रिंग होता है, so that you make it very clear that at what time of the year what type of clothing should be brought. Now second paragraph और second point जो है वो हमारा है suggest clothes for your friend to bring. So इसके basis पे you are going to form your second paragraph. So you will suggest कि summers में किस तरह की clothings, या extreme summers है तो कैसी clothings, winters है तो किस तरह की winters या किस हद तक winter आपके city में रहता है, so that the clothing could be accordingly. And last one, tell your friend about one item of clothing that you find the most useful. So this is going to be your last paragraph. So each point will have one paragraph. जो जिस point में information है उसी से related हम paragraph form कर देंगे. So that is it, how you have to form your paragraphs in your letter writing. Also make this very clear in your head that जो points पूछ रहे हैं आपने उनको बहुत ही clearly and बहुत ही nicely explain करना है. Irrelevant ideas won't help you out, or if you miss any of the point or the information of any of the point, then also you will lack in scoring high scores. So if your target is 7+ in the writing, make sure that you are writing what your points are asking you to write for. Don't go irrelevant or don't write unnecessary points. Clear? Now, ये तो था points. I will now write or add somewhere a small sample answer for the same question so that you can see what kind of model answer it should be. And before that, I would also let you know the use of correct language. तो ये letter कैसा है? This is the
informal letter because you're writing this letter to your friend. एंड जो इनफॉर्मल लेटर है उसमें लैंग्वेज भी इनफॉर्मल होनी चाहिए. इनफॉर्मल का मतलब कैजुअल, जो आप जनरल लाइफ में लैंग्वेज यूज करते हो, जो लैंग्वेज आप अपने फ्रेंड से एक्चुअली में बात करते हुए यूज करोगे, उसी तरह की लैंग्वेज को आपने यहाँ पर यूज करना है. यू डू नॉट हैव टू एड और यू डू नॉट हैव टू राइट वेरी फॉर्मल स्टेटमेंट्स, राइट. अब जब हम अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? मैंने आपको बताया था कि हमारी स्टार्टिंग कैसे होगी. वी कैन सिंपली से हाय जॉन, कॉमा, एंड देन वी आर गोइंग टू लीव वन लाइन एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन. अब मैं डायरेक्टली ये तो नहीं बताऊंगी कि वेदर कैसा है, राइट, या फिर आपको किस तरह की क्लोथिंग लेके आनी चाहिए. नो. फर्स्ट ऑफ कोर्स जब आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो तो आप उससे हाय हेलो करोगे, उसका हालचाल पूछोगे, अपना बताओगे, राइट. सो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? होप यू वुड बी फाइन एट योर प्लेस. आई रियली मिस यू एंड आई कांट वेट टू सी यू as you told me or as you mentioned in your previous letter that you are moving to my city and would be living with me. Full stop. I'm really excited about it. तो ये मेंशन करके फिर उसके बाद हम पॉइंट नंबर 1 पे आएंगे. ठीक है. तो क्योंकि आपसे उसने एक ईमेल लिख के ये पूछा था कि किस तरह के क्लोथिंग वो लेके आए, तो अब आप ये भी चाहो तो मेंशन कर सकते हो कि एज यू आस्क्ड मी इन द मेल और इन द प्रीवियस मेल दैट you wish to know the type of clothing you should bring with you. So फिर so करके आप अपना फर्स्ट पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि आपके सिटी में कैसा वेदर होता है. तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है आप इसका बना सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं दैट, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखना है तो मैं कह सकती हूँ कि जैसे अब मैं अगर अपनी सिटी के बारे में बताऊं, विच इज देहरादून, इट्स अ वैली, इट इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स. सो वहां पे जो वेदर है वो बहुत ज्यादा हॉट नहीं होता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हॉटनेस नहीं होती है, एक्सट्रीम समर्स नहीं होते हैं. तो मैं कह सकती हूँ कि यूजुअली इन माय सिटी वी हैव समर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ May to July, which is not so extreme. So you need not have to carry very light clothes, but yes, in the month of July and August, we usually have very high monsoon. There is very heavy rainfall. So you must carry a raincoat and umbrella so as to protect yourself while you travel during your stay. तो वो आप ऐड कर सकते हैं. फिर हम कह सकते हैं, अब देखो यहाँ पे आपको क्लोथिंग के बारे में ऐड नहीं करना है, क्लोथिंग इधर करना. एंड फर्स्ट पैराग्राफ में जब आप ऐड करेंगे तो आप सबसे पहले, अब जैसे हमने ये डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि आप कैसे फ्रेंड को स्टार्ट करेंगे लेटर लिखना, उसके बाद में आप फर्स्ट पैराग्राफ में बता सकते हैं कि कौन से मंथ्स में आपके विंटर्स होती हैं, कब मॉनसून स्टार्ट होता है, फॉल टाइम यानी कि विंटर्स या ऑटम कब होता है. एंड फिर उसके बाद आप अपने एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव कर सकते हैं, जिसमें आप क्लोथिंग सजेस्ट कर सकते हैं. समर्स में उसको किस तरह के कॉटन क्लोथिंग लेके आनी चाहिए. लाइट कलर क्लोथिंग वुड बी बेटर बिकॉज सिटी में कई बार बहुत ज्यादा गर्मी होती है, राइट. सो उस तरह की चीजें. मॉनसून्स में बहुत हैवी रेनफॉल्स होती हैं, सो यू कैन ऑल्सो कैरी अ रेन कोट अलॉन्ग विद यू, तो वो आप बता सकते हैं. लॉन्ग बूट्स आप कैरी कर सकते हैं बिकॉज मेनी अ टाइम्स ड्यूरिंग द मॉनसून वाटर क्लॉगिंग बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम, राइट. तो वहां पे आप वो कह सकते हैं. देन आप फॉल यानी विंटर्स या ऑटम के बारे में बात कर सकते हैं कि in the month of from the month of November to January there's a very cold weather, so you must carry warm clothing with you along with long coat and long jackets so that you mufflers and caps. ठीक है, तो जो भी आपको लगता है
क्लोथिंग जिस तरह की आपने सजेस्ट करनी है वो, एंड देन फाइनली एक लाइन छोड़ के यू आर अगेन नाउ गोइंग टू मेक अनदर पैराग्राफ जिसमें आप बताएंगे अपने फ्रेंड को कि जो सबसे ज्यादा यूजफुल क्लोथिंग, वन पीस ऑफ क्लोथिंग विच यू थिंक इज मोस्ट यूजफुल एंड उसको लेकर आनी चाहिए, ही और शी मस्ट कैरी. सो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ तो आई वुड से a warm shawl or muffler is a must because as it is a valley. अगर मैं जब बोल रहा हूँ कि मैं एक वैली में रहती हूँ और कभी कभी आफ्टर रेन काफी ठंडा हो जाता है, सो यू कैन ऑल्सो से दैट कि इट इज बिकॉज इट्स वेरी हैंडी, यू कैन जस्ट कीप अ वार्म शॉल इन योर बैग and travel anywhere because after the rain it tends to get cold, so it is easy to carry or it is easy to wear during the cold times or during the chilly nights or during the chilly evenings, right? तो इस तरह से आप चाहो तो ये एक piece of clothing, because वो mention करना ही पड़ेगा. और क्या हो सकता है? It can be a long coat that you can take along with you and can easily wear it while traveling or during the evenings, right? Also आप कह सकते हैं maybe a cap, right? Because आप कह सकते हैं it tends to snowfall. It usually snowfalls in the evening sometimes, so you can wear it and protect yourself from getting cold. तो इस तरह से one piece of clothing कौन सी होनी चाहिए, you can just mention that. तो ये था आपका points और उन points में क्या क्या आप लिख सकते हो वो, ठीक है. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा. हर एक क्वेश्चन चाहे वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, सेमी फॉर्मल है, उसमें 3 पॉइंट्स होंगे. तीनों पॉइंट्स के बेसिस पे 3 पैराग्राफ्स बनेंगे. स्टार्ट कैसे करना है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्लोज कैसे करना है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 3 पैराग्राफ्स कैसे बनेंगे ये हमने ऑलरेडी अब डिस्कस कर लिया. फाइनली लास्ट चीज जो अब बड़ी इंपॉर्टेंट है लेटर्स में और स्टूडेंट्स टेंड टू इग्नोर इट is the correct usage of language, जैसे मैंने पहले बताया था. तो उसका एक छोटा सा अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो फॉर एग्जाम्पल मानो आपका एक फ्रेंड है जो आपकी सिटी में आ रहा है एंड आपने उससे कहना है कि आप मुझे अपनी सारी अराइवल डिटेल्स भेज देना ताकि मैं आपको टाइम से पिकअप करने एयरपोर्ट पे आ जाऊं. तो उसको, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है, तो उसको आप कैसे कहोगे? उसको आप कहोगे प्लीज सेंड मी ऑल योर अराइवल डिटेल्स सो दैट आई कैन रीच टू द एयरपोर्ट ऑन टाइम टू पिक यू अप, राइट? यही बात वाइज वर्सा आपके बॉस को कहनी है आपने. आपका बॉस सिटी में आ रहा है, राइट, फॉर सम इम्पोर्टेंट मीटिंग एंड यू हैव टू राइट टू योर बॉस कि वो आपको उनकी अराइवल डिटेल्स बता दें ताकि आप उनको लेने पहुंच जाएं टाइम से. तो उनको आप इस तरह की कैजुअल लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, वहां होगी फॉर्मल लैंग्वेज यूज, क्योंकि वो एक फॉर्मल लेटर है. तो फॉर्मल लैंग्वेज कैसे हो सकती है? आप कह सकते हो वहां पे कि आई वुड प्लीज ask you or I would please like you to send me all your arrival details so that I can reach to the airport before time to pick you or to take you or to receive you, not take you actually, to receive you at the airport so as to avoid any further inconvenience or so as to avoid any inconvenience. So this is the choice of word that I have done, inconvenience, right? Please, these are few words that I've chosen which are the formal words, which makes it altogether a formal language or a formal statement. So make sure आप formal letter लिख रहे हो तो language भी उसी तरह की choose होनी चाहिए. Informal लिख रहे हो तो आप casual language का use कर सकते हो. तो ये कुछ चीजें थी जो लेटर राइटिंग में अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपका अच्छा स्कोर होगा. इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज जो मैं ऐड कर देती हूँ वो ये है कि अगर आपको कोई लेटर्स इस तरह के आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट में गए टू हैव डिनर विद योर फैमिली बट यू वर नॉट हैप्पी विद द फूड एंड द सर्विस दैट दे प्रोवाइडेड, यू हैव टू राइट अ लेटर टू द मैनेजर रिगार्डिंग इट, राइट? तो उस लेटर में इस तरह के जो लेटर्स होते हैं, या आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड खो गया and you have to write a letter to the authorities at your college to reissue you your identification card. तो अगर इस तरह के कोई भी लेटर्स आते हैं
तो प्लीज डू कीप दिस इन माइंड कि आप जितना ज्यादा रेलेवेंट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन दोगे उतना ज्यादा आपका आंसर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आप लिख रहे हैं कि मुझे प्लीज मेरा आइडेंटिफिकेशन कार्ड री इशू कीजिए क्योंकि वो खो गया, तो आप स्टार्टिंग में जब आप बता रहे हैं कि आप कौन हैं और आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, तो उस टाइम पे अच्छा एक और चीज याद रखना, लेटर के बीच में कहीं पे भी अपना नाम नहीं लिखना है। आपका नाम जो है लेटर के एंड में ऑलरेडी आ जाएगा, तो बीच में कहीं नहीं लिखना। बीच में स्टार्टिंग में अगर मैं कहूँ तो आप ये जरूर कह सकते हैं, आई एम अ स्टूडेंट एट द कॉलेज studying in bachelor's degree in commerce department, या studying in the second year bachelor's degree in commerce department या in commerce section, right? वो लिख सकते हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि my identification number या my I-card number was 405,621X। तो इस तरह स्टैटिस्टिकल डेटा यानी नंबर्स या आप जो फिगर्स हैं वो मेंशन कर सकते हैं, विच मेक्स इट मोर रियलिस्टिक, आपके आंसर को और ज्यादा रियलिस्टिक कर देगा। सिमिलरली मैंने कहा था कि आप रेस्टोरेंट में गए एंड आप यू आर नॉट हैप्पी विद द फूड एंड सर्विस, सो यू हैव टू राइट अ लेटर टू द मैनेजर। तो वहां पे आप मैनेजर को क्या बता सकते हैं, आप कौन है, यू कैन से आई एम अ रेगुलर कस्टमर ऑफ द रेस्टोरेंट, but unfortunately yesterday when I visited to the restaurant with my family, I was really unhappy with the quality of food and the service that was offered to me. I was allotted seat number, not seat number, table number, right? Restaurant mein jaate hain to it's table number. So you can say I was allotted table number 15 and my order number or my bill number was 26X15, right? तो इस तरह से it makes it more clear कि आप कौन हैं, राइट एंड जब भी हम, अगर मैं खुद अपने लिए सोचूं और मुझे ऐसा कोई लेटर लिखना हो किसी को, तो मैं ये चीज जरूर मेंशन करूंगी ताकि उसको पता लग जाए कि मैं कौन हूं, मैं एग्जैक्टली कौन सा वाला कस्टमर हूं। बिकॉज एक रेस्टोरेंट में कितने सारे कस्टमर्स विजिट कर रहे होंगे, राइट? एक कॉलेज में कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, और हो सकता है कि किसी का कार्ड खो गया, तो दे आर नॉट गोइंग टू गेट टू नो डायरेक्टली कि कौन बंदा ये लेटर लिख रहा है। तो मैं जरूर अपना आईडी कार्ड नंबर डेफिनेटली मेंशन करूंगी। अगर मुझे कोई बैंक से सर्विस चाहिए और मैं बैंक को लेटर लिख रही हूँ, तो मैं अपना, अगर मेरा वहां पे कोई अकाउंट नंबर है तो मैं अपना अकाउंट नंबर या अपनी कस्टमर आईडी मेंशन कर सकती हूँ। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो सच हो, it is just that you have to make your letter more realistic. You have to show the examiner that how good you are at forming or delivering your idea very appropriately. So try कि आप इस तरह से exact information और बहुत ज्यादा statistical information जो है, जो relevant information आप बना सकते हैं, उसको जरूर add कीजिए। इसके लिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आई विल एड दोज एग्जाम्पल्स, और प्रोबेबली आई एम गोइंग टू शेयर अ लिंक विद यू गाइज, सो दैट वहां जाकर आप बहुत सारे एसेज, बहुत सारे लेटर्स रीड कर सके, उनके सैम्पल्स रीड कर सके, सो दैट यू गेट अ वेरी क्लियर आइडिया व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट एंड हाउ मच टू राइट इन योर लेटर्स. So I think I've made my part clear for the letter writing. If you still have some doubts, questions and queries, you can drop your comments. I will definitely try answering them back, and I will try that we can make further videos related to your doubts or your problems. So that is it for the day. I think it was a little long video, but we'll try I have tried to cover almost each and everything what I could. But still, some doubts, do let us know. And if you need offline sessions, we definitely are available in Mohali. You can reach us on our given contact numbers. The address is also mentioned. The name of our institution is Gurukul International. So we hope to see you soon. Bye-bye.